تھا۔ سائل کا مقصد یہ تھا کہ اے جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی سورج جیسے تھے یا چاند جیسے تھے یا گلاب جیسے تھے؟ سائل یہ کہہ رہا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہنستے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے، کیسے تکلم کرتے تھے، حضور کیسے چلتے تھے؟ تو جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر پاک کو جھکایا، توقف فرماتے ہیں، اور جب اپنے سر کو اٹھایا ارشاد فرماتے ہیں آئینہ سائل سوال کرنے والا کہاں گیا؟ وہ سائل حاضر ہوتا ہے۔ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے سائل سن، علی کیسے بتا سکتا ہے حضور کیسے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے کائنات کے اندر نبی جیسا کسی کو نہیں بنایا، تو علی کیسے بتا سکتا ہے کہ نبی تو جب اللہ نے کائنات کے اندر علی نبی جیسا کسی کو نہیں بنایا تو علی کیسے بتا سکتا ہے کہ نبی تو جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد درجہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف انسانوں نے نہیں محبت کی، بلکہ نبی کے عشق میں پتھر روتے تھے، نبی کے عشق میں جانور مر گئے، نبی کے عشق میں اشجار درختوں سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ پتہ چلا کہ صرف انسانوں نے نہیں اللہ کے نبی سے محبت کی ہے، بلکہ یہ کائنات کے اندر یہ زمین یہ آسمان، یہ دریا، یہ ابحار، یہ اشجار، یہ زمینوں کا یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ چاہے وہ نظام شمسی ہو چاہے نظام قمری ہو، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے آئیے اس پر ایک روایت میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جناب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھ کر مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے، اور شاید جیسے آج میرے سرکار کسی کا انتظار نہ کیا دیکھا؟ صحابہ کا بیان ہے کہ ایک نوجوان بکریاں چراتا ہوا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، اس کی نظر سرکار کے نبوت والے عینین پر مرکوز ہو گئی۔ سرکار نے محبت بھری نظر اس بکری چرانے والے نوجوان کے چہرے پر ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت بھری آنکھیں اور ان آنکھوں کا پیار، ان آنکھوں کی نورانیت اس شخص کے دل میں کھب جاتی ہے، اور وہ حضور کو دیکھتا ہوا اپنی بکریوں کو ہانک کر کے واپس لے گیا۔ اس نوجوان کا نام تاریخ میں ابو قرصافہ بتایا جاتا ہے۔ ابو قرصافہ یہ بھی بچے تھے اس وقت۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر ابو قرصافہ کی ایک نظر پڑی، رسول کائنات کی محبت ان کے دل میں بس گئی۔ یہ یتیم تھے، یہ اور ان کی والدہ بیوہ تھی، یہ یتیم تھے۔ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں شرف صحابیت سے مشرف ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ روزانہ مدینہ کے مضافات میں بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن حسن اتفاق اس دن بکریوں کو دوسرے راستے پہ جانا تھا، لیکن خدا کی قسم ان جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کا نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ
वसल्लम आज किसी का इंतजार फरमा रहे हैं, और वो बकरियां भी अल्लाह के नबी के दीदार से मुशर्रफ होने वाली थी। इसलिए अबू कुरसाफा तो रोजाना बकरियां मदीना के मसाफात में चराया करते थे, मगर बकरियां हुस्न इत्तेफाक आज मदीने की शाहराह पर आ गई हैं, मदीने की रास्ते पर आ गई हैं, उन राहों पर आ गई हैं जिन राहों से रसूल कायनात गुजरते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसे आलम में अबू कुरसाफा है, बकरियां ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अतहर पर अबू कुरसाफा की नजर पड़ती है। अल्लाह के नबी ने मोहब्बत और इश्क मोहब्बत वाली नजरों से अबू कुरसाफा को देखा। नबी की मोहब्बत अबू कुरसाफा के दिल में खुब गई। अबू कुरसाफा मुस्कुराते हुए पलट करके सरकार को देख रहे हैं और बकरियों को हाँक करके पहाड़ की वादी में ले गए। लेकिन अल्लाह अकबर, उलमा फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा साहिब ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस को नकल फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन तो हुस्न इत्तेफाक बकरियां मदीना की शाहराहों पर चली गई थी, लेकिन रोजाना अब अबू कुरसाफा खुद ब खुद बकरियों को हाँक करके मदीने के रास्ते पे ले जाया करते हैं कि आज रसूल कायनात की दीदार हो जाए, आज रसूल कायनात की दीदार हो जाए। लेकिन देखिए, जब इंसान किसी से मोहब्बत करने लगता है, जब इंसान किसी से हाथ दर्जा मोहब्बत करने लगता है, तो वो उसका इश्क उसे बड़ा दिलेर बना देती है। उसका इश्क किसी से छुपती नहीं है, इश्क और मोहब्बत किसी से पोशीदा नहीं रहती है, बल्कि इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है, हाथ दर्जा मोहब्बत करता है। अबू कुरसाफा ने नबी से मोहब्बत किया, हाथ दर्जे मोहब्बत किया। तारीख में आता है कि अबू कुरसाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बकरियों को जब लेकर के गए और जब उनके घर में यानी खालू ने उन्हें खाने के लिए खाना देता था, रहने के लिए मकान दिया था, और उनकी वालदा को भी रहने के लिए मकान दिया था। ऐसे आलम में जब किसी इंसान किसी से हद दर्जा इश्क करता है, इश्क और मोहब्बत करता है, तो उसका इश्क और मोहब्बत किसी से पोशीदा नहीं रहता है। हज़रत अबू कुरसाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी यही हुआ। जब अपनी खालू, इनका खालू कट्टर काफिर था, बहुत बड़ा काफिर था, अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी किया करता था। लेकिन जब अबू कुरसाफा के घर में जब सबके लोग बैठते थे, सबके सब बैठते थे, ऐसे आलम में इनकी वालदा रहती थी, इनकी खाला भी रहती थी, इनके खालू भी रहते थे, और मदीने में किसी शख्स के ताल्लुक से जब वहां पर तज़किरा होता था और ये बात होती थी कि फलां तो बड़ा साहिबे हुस्न जमाल है, तो अबू कुरसाफा बीच में बोल दिया करते थे, मोहम्मद भी बड़े हुस्न जमाल वाले हैं। बीच में जब अबू कुरसाफा के दरमियान किसी शख्स का तज़किरा होता था, तो अबू कुरसाफे में बोल दिया करते थे, अल्लाह के नबी बड़े हुस्न जमाल वाले हैं। जब किसी साहिबे अक्ल व दानिश का तज़किरा होता था, अबू कुरसाफा कहते थे, मोहम्मद भी बड़े दानिश और अक्लमंद हैं। ऐसे होते होते एक दिन अबू कुरसाफा का जो खालू था, वो खालू बोलने लगा, मेरे दिमाग में एक बात टनकती है कि आखिरकार जब मैं बात किसी और का करता हूँ, अबू कुरसाफा तू तज़किरा मोहम्मद का क्यों करता है, बात क्या है? लेकिन इश्क जब आदमी किसी से कर लेता है तो इश्क बड़ा दिलेर होता है, इश्क उसे ताकतवर बना देती है। अबू कुरसाफा मचल जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अबू कुरसाफा के खालू ने कहा, खबरदार, खाना तो मेरा खाता है, मेरे मकान में रहता है, कपड़ा भी मेरा पहनता है, उसके बावजूद मेरे दुश्मन माज़अल्लाह मोहम्मद की तारीफ तू कर रहा है। अबू कुरसाफा तड़प गए, इरशाद फरमाते हैं, खुदा की कसम, ये खाना भी छोड़ दूंगा, मकान भी छोड़ दूंगा, लेकिन ऐ खालू खबरदार, अगर मोहम्मद के ताल्लुक से अगर कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं है। ये बात जैसे सुनी, अबू कुरसाफा के खालू ने कहा, ठीक है, अगर ये बात है, मकान छोड़ दे, मैं तुझे कोई उजरत भी नहीं दूंगा, अपनी माँ को लेकर के तू कहीं जा और चला जा। रात की तारीकी आती है, वालदा ने इनके हाथ को पकड़ा, कहा, लगते जिगर देखो, तुम यतीम हो, मैं बेवा हूँ, ऐसे आलम में कोई और पनाह देने वाला नहीं है, ऐ लगते जिगर क्या कर रहे हो? अबू कुरसाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम को घर आए तो इरशाद फरमाते, ठीक है, आज हम पूरे घर वालों के सामने एक सौदा तय करते हैं। अबू कुरसाफा की माँ ने कहा, बेटा कौन सा सौदा? कहा, ठीक है, तुम और खाला दोनों के दोनों जाओ, मेरे हबीब मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाओ और जा करके उन्हें देख लेना, और जब देख करके वापस आना, सीने पे का हाथ रख करके कसम खा के
कहना अगर तुम मोहम्मद को छोड़ने की बात करोगी मैं छोड़ दूंगी, मैं छोड़ दूंगा। ये सुनना था। उनकी वादा ने कहा चलो ठीक है, एक शर्त पूरी कर लेंगे, जाकर के हम देखेंगे और देख करके वापस आएंगे, कह देंगे मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन अल्लाह अकबर, ये उन्होंने मंसूबा बनाया। अबू कुरसाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेचैनी के आलम में पूरी रात गुजार दी, जैसे बेचैनी के आलम में पूरी रात गुजरती है और सुबह तैयारी होती है। इनकी वालदा भी इनकी खाला, ये दोनों रसूल कायनात की खिदमत आलिया में जाने के लिए तैयार होती है। जैसे वे उधर से निकलती हैं, अबू कुरसाफा अपने हाथों को उठा करके अल्लाह की बारगाह करम में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तेरे हबीब की बारगाह में भेजना मेरा काम था। मौला इनके दिल में मोहम्मद की इश्क की आग को पैदा कर देना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहम्मद हुसैन मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू कुरसाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथों को उठा करके दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम इन्हें तेरे हबीब की बारगाह में भेजना ये मेरा काम था। इनके दिल में इश्क रसूल की तरफ पैदा करना ये तेरा काम है। इनकी खाला और वालदा वापस गई और जाने के बाद जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखा, देख करके वापस आती है। शाम के वक्त सब के सब बैठते हैं, अबू कुरसाफा भी है, उनकी वालदा भी है, खाला भी है, उनके खालू भी है। अबू कुरसाफा ने वालदा से पूछा, माँ कहो कैसे मेरे हबीब को पाया? या उम्मी कैफा वजदते हबीबी मोहम्मद, ऐ माँ ये बताओ कैसे मेरे महबूब मोहम्मद को कैसे पाया? बताओ, क्या अपने सीने पे हाथ रख करके बताओ, क्या मैं मोहम्मद अरबी को छोड़ दूं? ये इनकी वालदा बोलती, इससे पहले इनकी खाना बोलती है, वल्लाहे राइना रजुलन इज़ा तकल्लमा खरजा मिन फैह नूर। खुदा की कसम आज तक मैंने बड़े बड़े लोगों के मजलिसों को देखा है, मगर इतना साहिब हुस्न और जमाल मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने ऐसे शख्स को देखा है जब वो मोहम्मद कलाम करते हैं और उनका मुंह खुलता है तो उनके मुंह से नूर निकलता है, उनके मुंह से नूर निकलता है। हज़रत अबू कुरसाफा कहते हैं, ऐ माँ ये बताओ क्या मोहम्मद को छोड़ दूं? इतना सुनना था। उनकी खाला और माँ ये दोनों तरफ करके बोलती है, ऐ अबू कुरसाफा अगर तुझे छोड़ना है छोड़ दे, खुदा की कसम मैं मोहम्मद के कदम पर अपनी जान बर्बाद कर दूंगी, मगर कभी भी मोहम्मद अरबी। ये है इश्क, ये है इश्क, इश्क रसूल। तो कायनात के अंदर सबसे बड़ी दौलत इश्क रसूल, सबसे बड़ी दौलत इश्क रसूल। अल्लाह ने अपने नबी को बेमिसल बेमिसाल बनाया। ज़ाते करीमा बेमिसल बेमिसाल है। नबी के ज़ात को अल्लाह ने बेमिसल बेमिसाल। यही वजह है कि अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन राहों से गुजरते थे उन राहों से कस्तूरी की खुशबू आया। वो गलियां, वो शाहराहें खुशबू से महक जाया करते थे। इसी की तर्जमानी करते हुए आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, उनके महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा। अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसल बेमिसाल अपने नबी को बनाया। हुस्न में भी बेमिसाल, सीरत में भी बेमिसाल, सूरत में भी बेमिसाल। मेरे नबी की सीरत की तरह किसी की सीरत नहीं, मेरे नबी के सूरत की तरह किसी की सूरत नहीं। मेरे नबी को अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। यही वजह है मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब वसीयत के मुताबिक मैंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया है, फरमाते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर को शरीर पर रखा गया तो इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने देखा, मेरी समा मेरी कानों ने सुना। इरशाद फरमाते हैं खरजा मिन जसदे ही रिहा। खुदा की कसम जब
वसीयत के मुताबिक मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने के लिए शरीर पर रखा है। इरशाद फरमाते हैं मौला अली, खुदा की कसम नबी के जसद अतहर से कस्तूरी की खुशबू निकलती है। ऐसी खुशबू थी, उस खुशबू ने पूरे शहर मदीना को उस कस्तूरी ने शहर मदीना को मुअत्तल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसमें अतहर से निकलने वाला वो मुश्को अंबर से बढ़कर, कस्तूरी से बढ़कर जो खुशबू था, उस खुशबू में भी मेरा और आपका नबी बेमिसाल है। यही वजह है कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मक्का आई, तो फरमाती हैं कि जब मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदे मोहतरमा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वादे के मुताबिक कि जितने दिनों तक बच्चों को दूध पिलाया जाता है उन दिनों तक मैं मोहम्मद अरबी को लेकर के साथ जाऊंगी, और जब आप घर लेकर के गई तो हदीस में आता है कि उस रात कबीला बनु साद के हर घर से कस्तूरी की खुशबू आ रही। कबीला बनु साद के हर घर से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। हदीस में है कि जब सुबह सवेरे कौम के और कबीले की तमाम औरतें पानी भरने के लिए इकट्ठा होती हैं, कुएं पे आती हैं ताकि पानी भर के ले जाएं, तो हर एक औरत एक दूसरे से पूछती है आज की रात एक अजीब सा मामला पेश आया है। दूसरी ने कहा क्या बात है? कहा क्या तुझे मालूम नहीं है आज पूरी रात मेरे घर के दरो दीवार महक रहे थे। दूसरी खातून ने कहा हाँ वल्लाह मेरे घर भी यही मामला था, आज की रात पूरी रात मेरे घर के दरो दीवार ये कस्तूरी से बढ़कर खुशबू आ रहे थे। यहाँ तक कि जब कबीले की सारी औरतें इकट्ठा हो गईं और सबों ने इस बात का इकरार कर दिया, तो सबों ने कहा अब चलो हलीमा सादिया के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं आखिरकार क्या उसके घर भी यही मामला पेश आया है। अब कौम की तमाम औरतें हैं, हजरत हलीमा सादिया की सहेलियां हैं, ये सब के सब हजरत हलीमा सादिया के मकान की तरफ जा रही है। लेकिन जैसे जैसे ये औरतें बढ़ती जा रही हैं, वो कस्तूरी की खुशबू उनके करीब होती जा रही है। ये औरतें जैसे हलीमा सादिया के आंगन में पहुंचती हैं, दरवाजे पे दस्तक देती हैं, क्या देखती हैं कि वो खुशबू जो रात भर हमारे दरो दीवार से आती रही, ये हजरत हलीमा सादिया के कोठरी से आ रही है। जब दरवाजे पे दस्तक दिया, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला है। जैसे दरवाजा खोला है वो खुशबू बढ़ गई। हजरत हलीमा सादिया से उनकी सहेलियों ने पूछा कि ऐ हलीमा सादिया ये तो बताओ क्या तुम अरब गई थी और अरब से कोई बादशाहों वाली खुशबू लेकर के आई हो? आज रात हमारे घरों के दरो दीवार से कस्तूरी से बढ़कर खुशबू आ रही थी, आखिरकार ये कौन सा इतर लेकर के आई हो, कौन सी कस्तूरी लेकर के आई हो कि जिसकी वजह से हमारी मशामी जान को मुअत्तल किया जा रहा है। हजरत हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है खुदा की कसम जानना चाहती हो वो कौन सा खुशबू है, वो कौन सी कस्तूरी है, वो कौन सा खुशबू है? आओ चलो। हलीमा सादिया ने अपनी सहेलियों के हाथों को पकड़ा है, उस कमरे में लेकर के गई जहां मोहम्मद अरबी आराम कर रहे थे। जैसे उस कमरे का दरवाजा खुलता है, उनकी सहेलियों ने क्या देखा? मोहम्मद अरबी मुस्कुरा रहे हैं, उनके जिस्म अतहर से कस्तूरी की खुशबू निकल रही है। इसीलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी को हर आज़ा में बेमिसाल